So today we will continue water soluble vitamin. What are water soluble vitamins? The name of water soluble vitamins are B complex and C. In the previous class you have read about thiamine, riboflavin, niacin, pantothenic acid, pyridoxine. Now you will study about biotin, folic acid, cyanocobalamin and vitamin C. So biotin, it is also known as anti-egg white injury factor. It is a sulfur containing B complex vitamin. It has one imidazole ring which is fused with pentothene ring and has a apoenzyme which is linked by amide linkage. And biotin, basically it is a carrier of carbon dioxide in the carboxylation reaction. Carboxylation reaction वो reaction होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटीन बिकॉज इट एक्ट्स एज अ कैरियर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन. सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बायोटीन. देन सोर्स, इट इज जनरली प्रेजेंट इन आवर नॉर्मल bacteria which is present in our gut, and it is widely distributed in plant as well as in animal food. It is rich in, please silent your phones. It is rich in liver, kidney, egg yolk, milk, tomato and grains. The daily requirement of biotin is 30 to 40 microgram per day. So this is the reaction how biotin transfer the carbon dioxide. Biotin react with the enzyme and they form the carbonic phosphate anhydrase by taking the phosphate group through ATP. Then this biotin oxide enzyme, then with the presence of it react with the enzyme and the substrate is formed and carbon dioxide transferred to that enzyme. So these are the reaction in which the biotin is required as a coenzyme. So one enzyme that use biotin is acetyl coenzyme A carboxylase, which is required for the synthesis of fatty acid. This metabolism you will read in the metabolism classes. So fatty acid synthesis में rate limiting enzyme कौन सा होता है? acetyl coenzyme carboxylase. rate limiting enzyme वो enzyme होता है जिसके inhibition और activation से whole cycle regulate होती है. ठीक है? Then propanide coenzyme carboxylase and then pyruvate carboxylase, which convert pyruvate into oxaloacetate. And these are biotin independent carboxylase reactions. Means this carboxylation reaction do not require biotin as a coenzyme. Now biotin antagonistic means the substance that inhibits biotin. So this protein which is present in the egg yolk is known as avidin. So it bind with the biotin which is present in the egg yolk. Avidin जो है वो egg white में present होता है. So वो bind कर लेता है and उसका uptake जो है biotin का वो inhibit हो जाता है. So that's why if we take unboiled egg, it causes the biotin deficiency. Avidin जो होता है वो heat labile protein होता है. तो जैसे ही boil करते हैं तो avidin जो है वो उसका डीनेचर हो जाता है, तो वो बायोटीन से बाइंड नहीं करता, सो बायोटीन बॉडी में अवेलेबल हो जाता है. सो दैट्स व्हाई इफ वी टेक रॉ एग इट कॉज द बायोटीन डेफिशिएंसी बिकॉज दिस प्रोटीन बाइंड विद द avidin bind with the biotin and the absorption of biotin is inhibited. So to see the avidin biotin system, we use ELISA test for the detection of pathogen. ELISA is enzyme linked immunosorbent assay. In this antigen antibody reaction होती है and then we see the result. So biotin की deficiency से क्या होता है? dermatitis हो जाती है, glossitis हो जाती है, means inflammation of the tongue. Hyperesthesia means sensation increase हो जाते हैं, muscle pain. Anorexia means muscle weakness and hallucination means false visualization. And इसकी deficiency के कारण split nails भी
हो जाते हैं मीन्स नेल ब्रिटल हो जाते हैं, वो ऑटोमेटिकली टूट जाते हैं. दैट if there is a split nail, it means there may be deficiency of biotin. And यदि आप एंटीबायोटिक यूज करते हैं then it also cause the biotin deficiency. क्यों? क्योंकि वो बैक्टीरिया फ्लोरा को डिस्ट्रॉय कर देती है, जिसके जो कि क्या सिंथेसाइज करता है, बायोटीन. तो इसके कारण बायोटीन की डेफिशिएंसी हो जाती है. सो एज अ प्रोलॉन्ग यूज ऑफ एंटीबायोटिक इट कॉज द विटामिन बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी जनरल केस में. देन इसीलिए जब एंटीबायोटिक सब्सक्राइब होती है तो साथ में बी कॉम्प्लेक्स इसलिए ही दिया जाता है टू कंपनसेट द बी कॉम्प्लेक्स डेफिशिएंसी, क्योंकि वो बैक्टीरियल फ्लोरा ऑफ इंटेस्टाइन को डिस्ट्रॉय कर देती है एंटीबायोटिक. सो दिस इज द व्हाई वी प्रिस्क्राइब बी कॉम्प्लेक्स विद द एंटीबायोटिक, बिकॉज इट इनहिबिट द इंटेस्टाइनल फ्लोरा विच सिंथेसाइज विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस. देन folic acid, it is derived from the word folium which means green leafy vegetables. So folic acid green leafy vegetables में ज्यादा प्रेजेंट होता है. इसके अंदर जो है पायरिडीन रिंग होती है, ग्लूटामिक एसिड होती है एंड बेंजोइक एसिड मिलके आपका फॉलिक एसिड बनाता है. देन कोएंजाइम, जो कोएंजाइम फॉलिक एसिड का होता है वो होता है टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड THFA, and the formation of tetrahydrofolic acid is catalyzed by the NADPH dependent folic reductase. So this is the structure of folic acid. Then this is how tetrahydrofolic acid is formed from folate reductase. It required NADPH as a reducing agent. Then tetrahydrofluoric acid की क्यों रिक्वायरमेंट होती है? बिकॉज इट हेल्प इन द वन कार्बन मेटाबॉलिज्म. वन कार्बन मेटाबॉलिज्म वो सब कार्बन कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिसमें सिंगल कार्बन एटम यूज होता है. ये वेरियस रिएक्शन में यूज होते हैं हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म में. जो वन कार्बन कंपाउंड्स हैं उसका एग्जांपल है फॉर्माइल, फॉर्मामिनो, हाइड्रोक्सी मिथाइल एंड मिथाइल ग्रुप. और ये कंपाउंड इंटरचेंजेबल होते हैं. दिस आर यूज इन द सिंथेसिस ऑफ द मीथ्योनिन. मीथ्योनिन जो है वो हमारा ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन में यूज होता है. ट्रांसमिथाइलेशन मीन्स ट्रांसफर मिथाइल ग्रुप फॉर वन कंपाउंड टू द अनदर कंपाउंड. देन ट्रांसमिथाइलेशन से आपके बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल सिक्रीट होते हैं जैसे कि कोलिन, इपिनेफ्रिन. इट इज अ कंपाउंड विच causes the activation of the parasympathetic and sympathetic system. Then creatine, इससे जो है वो creatinine phosphate synthesize होता है. Then it help in the donor and acceptor of the carbon unit and involve in the various amino acid and nucleic acid metabolism. Then source green leafy vegetables, yeast and moderate source इसका cereal and pulses होते हैं. Deficiency के causes क्या होंगे? प्रेगनेंसी में क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट इंक्रीज हो जाती है फॉलिक एसिड की. कुछ ड्रग्स होती है जो कि इंटेस्टाइनल एंजाइम को इनहिबिट करती है, वो होती है जैसे एंटी कन्वल्सेंट ड्रग. देन यदि हिमोलाइटिक एनीमिया हो एंड एनी डाइटरी डेफिशिएंसी, इसका डिजीज मैनिफेस्टेशन क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस रिड्यूस हो जाएगा क्योंकि इट इज यूज इन द न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म. देन प्यूरिन एंड pyrimidine कम हो जाएंगे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फॉलिक एसिड. देन ड्यू टू द ब्लॉकेज इन द डीएनए सिंथेसिस, इराइथ्रोसाइट्स का मैच्योरेशन में दिक्कत आएगी जिसके कारण जो होंगे आरबीसी आपके मैक्रोसाइटिक होंगे. दो टर्म होती है मैक्रोसाइटिक एंड माइक्रोसाइटिक. माइक्रोसाइटिक में आरबीसी का साइज स्मॉल हो जाता है विच इज सीन इन बेसिकली आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया. मैक्रोसाइटिक में क्या होता है कि आरबीसी का साइज बढ़ जाता है तो उसे बोलेंगे मैक्रोसाइटिक विच इज सीन इन द फॉलिक एसिड एंड B12 डेफिशिएंसीज एनीमिया. एंड रेटिकुलोसाइट्स का जो काउंट है वो बढ़ जाएगा क्योंकि आरबीसी के ब्रेकडाउन से एंड प्री मेच्योर फॉर्म ऑफ आरबीसीज होते हैं आपके रेटिकुलोसाइट्स. देन क्योंकि फॉलिक एसिड इज रिक्वायर्ड इन द होमोसिस्टीन मेटाबॉलिज्म, क्योंकि होमोसिस्टीन से आपका मिथाइलेशन रिएक्शन और मिथाइल ग्रुप में होता है. होमोसिस्टीन से आपका बनेगा मीथ्योनिन. ठीक है, तो इसके कारण यदि आपकी फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी होगी तो होमोसिस्टीन का लेवल भी इंक्रीज हो जाएगा. मीथ्योनिन से आपका होमोसिस्टीन बनता है. ठीक है. देन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, देयर इज अ माल फॉर्मेशन इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम व्हिच कैन रीच टू द आइदर
स्पाइना बाइफिडा और एंसेफेलाइटिस. एंसेफेलाइटिस मीन्स आपका इंटायर जो ब्रेन होता है एंड स्कल जो होता है वो पूरा मिसिंग होता है. एंड स्पाइना बाइफिडा मीन्स पूरी स्पाइनल कॉर्ड आपके बॉडी के आउटसाइड होती है. फर्स्ट डायग्राम इज द स्पाइना बाइफिडा, पूरी स्पाइनल कॉर्ड बेबी के बाहर है. एंड एंसेफेलाइटिस मीन्स आपका जो स्कल और ब्रेन है वो कवर नहीं है विद द बोन, दैट इज द एंसेफेलाइटिस एंड दे आर मिसिंग. देन रेकमेंडिंग डोज जो होती है वो 200 माइक्रोग्राम पर डे होती है. प्रेगनेंसी में 400 माइक्रोग्राम पर डे होती है एंड लैक्टेशन में 300 माइक्रोग्राम पर डे होती है. एंड सर्टेन ड्रग्स दैट इनहिबिट द फोलेट इज सल्फोनामाइड. इसका स्ट्रक्चर रिजेम्बलेंस होता है फाबा से, दैट्स व्हाई इट इनहिबिट द फोलेट सिंथेसिस. इट इज एन एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, जो इनहिबिटर्स होता है दैट इज स्ट्रक्चरल रिजेम्बलेंस टू द सबस्ट्रेट. देन aminotyrine and methotrexate, it decrease the, it blockage the tetrahydrofluorate synthesis and ये आपका DNA synthesis को inhibit करती है. methotrexate as a cancer में use drug होती है. then cyanocobalamin, इसे एंटी पर्नीशियस एनीमिया विटामिन बी कहते हैं क्योंकि विटामिन B12 से पर्नीशियस एनीमिया होता है. सो विटामिन B12 आपका वाटर सॉल्युबल विटामिन है एंड इसके अंदर कोबालमिन सॉल्ट होता है. इसमें 4 पायरो रिंग मिलके कोरिन रिंग बनाती है एंड 5th वैलेंसी जो है वो आपकी बेंजा इमिडाजोल रिंग से फुलफिल होती है. 6th वैलेंसी में आपका कोई भी कंपाउंड होता है तो साइनाइड, हाइड्रोक्साइड, एडिनोसाइल और मिथाइल, जिसके अकॉर्डिंग अलग अलग नेम होते हैं कोबालमिन के. तो हाइड्रोक्सिल यदि ग्रुप प्रेजेंट है आर ग्रुप पे तो उसे बोलेंगे हाइड्रोक्सी कोबालमिन. ये आपके इंजेक्टेबल फॉर्म में यूज होता है. एडिनोसाइल जो है वो आपका स्टोरेज फॉर्म ऑफ विटामिन B12 है एंड मिथाइल ग्रुप जो है दैट इज मेजरली फाउंड इन द ब्लड सर्कुलेशन. तो ये आपका एब्जॉर्प्शन होता है विटामिन B12 का. जैसे ही विटामिन B12 इंजेस्ट करते हैं वो कोबालमिन जो सलाइवा के साथ प्रोड्यूस होता है उससे बाइंड करता है. फिर देन वो स्टमक में जाता है. स्टमक में जो है पेराइटल सेल जो है वो इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज करती है. वो इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ बाइंड करके फिर आपके इलियम के अंदर एब्जॉर्ब होता है. देन फिर ट्रांसफर करने के लिए ट्रांसकोबालमिन जो बाइंडिंग प्रोटीन होता है वो यूज होता है जो कि ट्रांसफर करता है इंटेस्टाइन से वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. देन व्हाट इज द रोल ऑफ विटामिन B12? इट हेल्प्स इन वेरियस रिएक्शन लाइक it is used with the enzyme methyl malonyl carbon coenzyme में isomerase, जो कि आइसोमराइजेशन करता है मिथाइल मेलोनेट को succinyl coenzyme में. then it help in the synthesis of the methionine from the homocysteine with the help of the enzyme homocysteine methyl transferase. then what is folate trap and folate deficiency? 1 carbon atom metabolism में आपका टेट्राहाइड्रोफ्लोरेट फॉर्म होता है एंड वो बाइंड करता है विटामिन इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन B12 से. तो यदि आपकी विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो रही है तो आपकी फोलेट की भी डेफिशिएंसी होगी बिकॉज इट इन्वॉल्व इन द ट्रांसमिथाइलेशन रिएक्शन. देन कॉजेज है विटामिन B12 की, एक तो न्यूट्रिशनल, देन डिक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन इन पर्नीशियस एनीमिया. इसमें इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है. तो इंट्रिंसिक फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसका एब्जॉर्प्शन हिंडर हो जाता है. देन इन प्रेगनेंसी इसकी डिजीज मैनिफेस्टेशन है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड एबनॉर्मल होमोसिस्टीन लेवल. देन इसमें सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेशन होता है बिकॉज इट डैमेज द नर्वस सिस्टम. इसमें डीमाइलिनेशन के कारण सेरिब्रल कॉर्टेक्स अफेक्ट होती है एज वेल एज द डॉर्सल कॉलम एंड पिरामिडल ट्रैक ऑफ स्पाइनल कॉर्ड. सो इसमें कंबाइंड डिजेनरेशन होता है, मीन सेंसरी एंड मोटर दोनों ट्रैक अफेक्ट होते हैं. दैट्स व्हाई इट लीड टू द कंबाइंड डिजेनरेशन. देन इसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण रोमबर्ग साइन पॉजिटिव आएगा, मीन्स व्हेन यू स्टैंड विद क्लोजिंग आई यू विल फॉल डाउन. एंड प्लांटर रिफ्लेक्स जो है वो एक्सटेंडेड आएगा जिसको बोलते हैं बेब्सकिन साइन. डेली रिक्वायरमेंट इसकी 1 to 2 माइक्रोग्राम पर डे होती है एंड प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में बढ़ जाती है. जनरली विटामिन B12 का एनिमल सोर्स होता है एंड
कर्ड जो है वो गुड सोर्स होती है विटामिन B12. Then vitamin C, it is also known as ascorbic acid. It is a water soluble vitamin and it is destroyed by the heat, alkaline medium and in storage. So vitamin C जो ascorbic acid होती है इसकी reducing property होती है, ठीक है, and generally आपका L-ascorbic जो है उसकी biological active form होता है in the body. Then जो आपका विटामिन सी है वो फॉर्म होता है यूरोनिक एसिड पाथवे. यूरोनिक एसिड पाथवे इज अ पाथवे इन ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म. तो वो ग्लूकोज के थ्रू यूरोनिक एसिड पाथवे से फॉर्म होता है. लेकिन ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स में जो एंजाइम होता है डेफिशिएंट होता है वो होता है L-ग्लूनोनोलैक्टोन ऑक्सीडेज. तो इस एंजाइम डेफिशिएंसी के कारण ये ह्यूमन बॉडीज के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता, ठीक है. एंड इसका एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी रिड्यूसिंग होती है, इसलिए बेनेडिक्ट टेस्ट पॉजिटिव देता है, ठीक है. मेन इसका बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन में यूज होता है. देन ये क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेशन करता है प्रोलीन एंड लाइसिन. सो इज हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ कोलेजन. कोलेजन जो है दैट इज आपका ग्राउंड एलिमेंट होता है which give the tensile strength to the fiber. ये आपके bone formation में भी use होता है. It plays role in the iron as well as in hemoglobin metabolism. It takes part in the metabolic reaction of tryptophan, tyrosine, folic acid and cholesterol. It enhances the immunoglobin so by phagocytic action. So ये आपका as a antioxidant भी help करता है क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट को डिस्ट्रॉय करता है. सो डेफिशिएंसी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी होती है. चिल्ड्रन में इसको बर्लोस डिजीज भी कहते हैं क्योंकि इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग द कोलेजन इन नॉर्मल स्टेट. सो कोलेजन एबनॉर्मल होता है जिसके कारण जो है वो ग्राउंड एलिमेंट जो है वो ब्रिटल हो जाता है और जो आपकी कैपिलरीज होती है वो फेब्राइल हो जाती है जिसके कारण आपको हेमरेज मिलेगा. पिटैकी मीन्स स्किन में जो रेड स्पॉट ड्यू टू द रप्चर ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल्स होते हैं उसे बोलते हैं पिटैकी. एंड इकाइमोसिस मीन्स आपका लार्ज क्लॉट फॉर्मेशन ड्यू टू द रप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स. तो पिटैकी इन माइल्ड स्टेज एंड इकाइमोसिस और हेमेटोमा इन द सीवियर स्टेज क्योंकि आपकी कोलेजन एबनॉर्मल है. देन इंटरनल हेमरेज may be seen in the conjunctiva, in retina. In epistaxis means bleeding from the nose. And hematuria means bleeding from in the urine. And melena means bleeding in the stool. तो इसके कारण bleeding होती है स्कर्वी में. Then जो आपके गम है वो swollen हो जाएंगे, spongy हो जाएंगे. Then there is a decrease in the wound healing क्योंकि विटामिन सी जो है वो wound healing में भी help करता है. बोन जो है वो proper फॉर्म नहीं हो पाएंगी तो बोन भी जो है वो ब्रिटल हो जाएगी एंड इट द स्वेलिंग ऑफ द बोन एंड द बोन जो है वो फ्रैक्चर के चांसेस भी इंक्रीज हो जाते हैं. नेल जो है वो प्रॉपर शेप में नहीं होंगे, कॉन्केव शेप्ड हो जाएगा. एनीमिया बिकॉज इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, इट कॉज द हाइपोक्रोमिक एनीमिया. एंड हाइपोविटामिनोसिस सी रेयर केस है लेकिन इट इज अ नॉन टॉक्सिक क्योंकि ये एक्सक्रीट हो जाता है थ्रू द यूरिन. लेकिन कई बार क्या होता है, इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सिलेट एंड ऑक्सिलेट स्टोन कैन फॉर्म इन द किडनी. सो जिंजिविटिस एंड ब्लीडिंग गम्स एंड नेल जो है वो आपके स्पून शेप्ड हो जाते हैं. दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ पिटैकी और इकाइमोसिस. Then dietary source, amla is the best source of vitamin C and any citrus fruit and green leafy vegetables are source of vitamin C. Daily requirement of vitamin C is 75 milligram per deciliter and in pregnancy and lactation it is increased up to 100 milligram per day. So certain compounds which act like vitamins are choline, inositol, carnitine and lipoic acid. So this is a general review of all the water soluble vitamin. Vitamin B1 is
थियामीन, एंड इसकी डेफिशिएंसी क्या होता है? बेरीबेरी. सेकेंड इज राइबोफ्लेविन, इसकी डेफिशिएंसी से ग्लोसाइटिस एंड एंगुलर सोमेटाइटिस. देन नियासिन, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? पेलेग्रा. देन पायरिडॉक्सिन की डेफिशिएंसी से सीजर एंड होमोसिस्टिन्यूरिया. देन पेंटोइथिक एसिड से बर्निंग फुट सिंड्रोम. बायोटीन से कोई स्पेसिफिक डिजीज नहीं होती. देन फॉलिक एसिड से मैक्रोसाइटिक एनीमिया. विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से मेगालोब्लास्टिक एनीमिया एंड सब एक्यूट कंबाइंड डिजेनरेटिव. देन स्कॉर्बिक एसिड से स्कर्वी. दिस इज जनरल रिव्यू. नियासिन ऑल्सो फॉर्म फ्रॉम द, किससे बनता है? अमीनो एसिड tryptophan. So if there is a deficiency of tryptophan, it leads to the deficiency of niacin and vice versa. यदि विटामिन सी की डेफिशिएंसी होगी, then tryptophan की भी डेफिशिएंसी होगी. So that's all for today's lecture.